رات کو کھانے کی میز پر سبھی بیٹھے ڈنر کر رہے تھے کہ تبھی فرحان تیمور نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ چاچو، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ میری اور سارا کی شادی جلد سے جلد کروا دیں۔ فرحان کی بات سن کر جہاں سب حیران ہوئے وہیں خوف سے سارا کے ہاتھ سے چمچ گر گیا، لیکن اس نے جلدی سے خود پر قابو پا لیا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ انکار کر کے یا کوئی بھی اعتراض کرنے کے قابل نہیں رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ سب فرحان تیمور کیوں کہہ رہا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، فرحان تیمور نے جو ایک بات ٹھان لی وہ پوری کر کے رہے گا، اور وہ سب کا لاڈلا اور گھر میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے سب اسی کی بات کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن بیٹا، ابھی تو سارا پڑھ رہی ہے نا؟ ہاں تو چاچو پڑھ لے، میں نے کون سا منع کیا ہے، شادی کے بعد پڑھ لے گی بھائی۔ عبداللہ، اب اگر میرا بیٹا اتنی ضد کر رہا ہے تو کیوں نہ شادی کر دی جائے؟ تیمور خان جو کہ فرحان کے والد تھے اپنے بیٹے کی سائیڈ لیتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ سے کہنے لگے، اور ویسے بھی گھر ہی کی تو بات ہے، کون سا تمہاری بیٹی بیاہ کر کہیں اور جائے گی، گھر میں ہی رہے گی نا؟ اور ویسے بھی میری بھی یہی خواہش ہے کہ اب جلد سے جلد اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجا دیکھ لوں، تو کیوں نہ اپنی اور اس کی دونوں کی خواہش پوری کر دی جائے۔ اپنے بڑے بھائی کی بات سن کر عبداللہ خان جو کہ سارا کے والد تھے وہ بھی مان گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ لوگوں کی مرضی، ویسے بھی وہ ہمیشہ سے آپ ہی کی تو بیٹی ہے، میں بھلا انکار کرنے والا کون ہو سکتا ہوں۔ عبداللہ خان اور تیمور خان دو بھائی تھے اور دونوں کا اپنا بزنس تھا۔ تیمور خان نے بہت کوشش کی کہ فرحان بھی ان کے ساتھ مل کر ان کا بزنس سنبھالے، لیکن فرحان کو شروع سے ہی پولیس پوسٹ جوائن کرنے کا شوق تھا، تو اس نے اپنے شوق کو مد نظر رکھتے پولیس میں اپلائی کیا اور سیدھا ڈی ایس پی بن گیا۔ وہ بہت ہی قابل اور ذہین تھا، جبکہ اس کے چھوٹے بھائی نے اپنے بابا کے ساتھ مل کر بزنس سنبھال لیا تھا۔ سارا اکلوتی تھی اور گھر کی لاڈلی بھی، اور اسی وجہ سے اس نے سب کے لاڈ پیار کا کئی چیزوں میں ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی اور BBA کر رہی تھی۔ وہ بھی ایک کامیاب بزنس وومن بننا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا اپنا ایک انٹرپرائز ہو جو اسی کے نام کا ہو اور خود اپنی محنت کے بل بوتے پر بنائے، نہ کہ بنا بنایا مل جائے۔ اسی سوچ کے تحت وہ کامرس کی فیلڈ میں آئی۔ اس کے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو بیٹیوں کو صرف کچن تک محدود رکھیں۔ وہ بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کی خواہشات کا بھی احترام کرتے تھے۔ فرحان سارا سے 5 سال بڑا تھا۔ جب سارا پیدا ہوئی تو سب سے زیادہ خوشی تو تیمور خان کو ہی ہوئی، کیونکہ ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کو اللہ پاک رحمت سے نوازے، لیکن یہ خواہش ان کی خواہش ہی رہی۔ لیکن جب سارا کی پیدائش ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور اسی خوشی میں سارا کو گود میں اٹھائے انہوں نے اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ یہ تمہاری نہیں، میری بیٹی ہے، جب تک یہ تمہارے پاس ہے اسے میرے فرحان کی امانت سمجھنا۔ بھلا عبداللہ اور فرزانہ بیگم کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ بیٹی گھر میں رہ جاتی اپنی ہی آنکھوں کے سامنے، اور نہ ہی نائلہ فرحان کی والدہ کو اعتراض تھا۔ یوں بچپن سے ہی دونوں کو منسلک کر دیا گیا۔ جب وہ لوگ بڑے ہوئے تو انہیں اس رشتے کے بارے میں آگاہ بھی کر دیا گیا تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ لیکن کچھ باتیں تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں اور وہ ہو کر رہتی ہیں، چاہے ان سے بچنے کی کتنی بھی کوشش کر لو، لیکن وہ ہو کر ہی رہتی ہیں۔ شادی کی تاریخ 15 دن کے بعد کی طے پا گئی تھی اور سب لوگ تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن ان سب میں سارا بہت پریشان تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ آ رہی تھی کہ فرحان مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہے ہیں۔ سارا کا دل بہت بوجھل تھا، وہ ہر وقت خاموش رہنے لگی تھی۔ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں، گھر میں ہر طرف رونق تھی، مہمان آ جا رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھی، ہر طرف کہے بکھرے ہوئے تھے، لیکن سارا ان سب سے کٹی کٹی رہنے لگی تھی۔ گھر کی خواتین ملبوسات اور جیولری کے انتخاب میں مصروف تھی۔ نائلہ بیگم اور فرزانہ بیگم ہر دوسرے دن سارا کے لیے کپڑے، جوتے اور زیورات خریدنے بازار جا رہی تھی۔ انہوں نے کئی بار سارا سے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن وہ ہر بار ٹال دیتی۔ آج بھی فرزانہ بیگم اس کی جیولری کے سلسلے میں بازار جا رہی تھی۔ چلو سارا، آ جاؤ بازار چلیں، تم اپنی جیولری بھی سلیکٹ کر لینا اور برائڈل ڈریس بھی دیکھ لینا، پرسوں سے فنکشنز ہو رہے ہیں، پھر ٹائم نہیں ملے گا۔ ماما میرے سر میں درد ہے، پلیز آپ خود دیکھ لینا۔ کیا بات ہے سارا، کیا تم خوش نہیں ہو اس شادی سے؟ جب سے ڈیٹ فکس ہوئی ہے میں تمہیں بیزار دیکھ رہی ہوں، تمہارے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آتی جو عام طور پر لڑکیوں کے چہرے پر شادی کے وقت ہوتی ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں صرف تمہاری ماں نہیں دوست بھی ہوں۔ سارا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور دل میں سوچنے لگی کہ کیسے بتاؤں کہ آپ کی بیٹی نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور اب شاید ساری زندگی اس کی سزا بھگتے گی۔ کیا ہوا، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ نہیں ماما، میں بس اپنی اسٹڈی اور اپنے خوابوں کو لے کر پریشان ہوں کہ سب کچھ جو سوچا تھا وہ ادھورا رہ گیا۔
क्या कुछ ख्वाब नहीं देखे थे मैंने, और अब जो हो रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बस इसीलिए दिल नहीं लग रहा, बस इतनी सी बात है। अरे इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है, और फरहान ने तुम्हारे बाबा से कहा है कि शादी के बाद सारा की पढ़ाई नहीं रोकी जाएगी और ना ही उसके ख्वाबों के बीच कोई दीवार खड़ी होगी। सब कुछ पहले की तरह होगा। अपनी माँ की बातें सुनकर वो हैरान रह गई, ये जानते हुए भी कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। फरहान मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मर्द जिसे अपनी बीवी की गलतियों का इल्म हो और फिर भी वो उसे ना जताए। क्या इतना ज़र्फ मुमकिन है किसी मर्द में? नहीं, ये सब फरहान ने बाबा को शादी के लिए मनाने की खातिर कहा होगा, वरना हकीकत में वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। उस दिन जिस तरह गुस्से में फरहान था, मुझे तो लगा था वो मुझे वहीं शूट कर देगा। 2 दिन कैसे गुजर गए पता भी ना चला। आज मेहंदी का फंक्शन था, घर मेहमानों से भर गया, हर तरफ गहमा गहमी का माहौल था। सारा को तैयार करके नीचे लाया गया। वो ग्रीन और येलो कंट्रास्ट में फूलों के जेवर से आरास्ता बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ सादी सी सफेद शलवार कमीज में मलबूस अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ फरहान तैमूर किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि पहले फंक्शन लड़की की तरफ से शुरू किया जाए या लड़के की तरफ से। बहुत बहस के बाद फरहान बीच में बोल पड़ा, मुझे लगता है दोनों को इकट्ठे बिठाकर इकट्ठे ही फंक्शन कर देना चाहिए। ओहो दूल्हे मियाँ बड़े बेताब हैं इकट्ठे बैठने के लिए। हाँ, फरहान के छोटे भाई रेहान ने उसे छेड़ते हुए कहा तो वो उसे घूरने लगा, जबकि बाकी कजन्स सब हंसने और होटिंग करने लगे। आखिरकार फैसला हो गया कि फंक्शन इकट्ठे होगा। फरहान स्टेज पर मौजूद था जब सारा को स्टेज पर लाया गया। फरहान ने सारा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी, टेंशन और उदासी सब कुछ था सिवाय खुशी के। उसे देखते हुए फरहान ने सर झटका और मुंह फेर लिया। फरहान का मुंह फेरना सारा ने नोट किया तो वो और भी ज्यादा डर गई। जब सारा को फरहान तैमूर के बराबर लाकर बिठाया गया तो वो सांस लेना भी भूल गई। उसे फरहान से बहुत खौफ आ रहा था। उसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो गया और वो हौले हौले कांपने लगी। उसका कपकपाना महसूस करते फरहान उसके करीब हुआ और उसके कान में सरगोशी करते बोला, ना मेरी जान, अभी से अपनी हालत खराब कर रही हो। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। कल से जब तुमसे हर बात का, हर हरकत का हिसाब लूंगा तो फिर क्या हाल होगा तुम्हारा, सोचो। और वैसे भी डीएसपी फरहान तैमूर अपने मुजरिमों को बिना सजा दिए कभी नहीं छोड़ता, इसलिए आज की रात रिलैक्स करो। असल खौफ तो तुम्हें कल महसूस होगा। इतना कहकर वो सीधा हो गया, लेकिन सारा का सारा खून खुश्क हो गया। खौफ के मारे उसकी सांस बंद होने लगी। उसकी हालत देखकर नायला और फरजाना जल्दी से उसकी तरफ आई। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मामा, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मैं मर रही हूँ। मामा मुझे यहाँ से ले जाएं प्लीज। चुप करो मेरी जान, ऐसी बातें नहीं करते। अभी हम लोग जल्दी से छोटी सी रस्म करके तुम्हें कमरे में ले जाएंगे, फरजाना बेगम ने उसे अपने साथ लगाते कहा और फिर नायला बेगम को कहकर रस्म शुरू की। तकरीबन आधे घंटे में रस्म मुकम्मल की गई और सारा को कमरे में लेटा दिया गया। बाकी लोग बाहर फंक्शन करते रहे। फरहान भी सारा की हालत देखकर परेशान हो गया था, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया और ऐसे बनकर बैठा रहा जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फंक्शन खत्म होने के बाद फरजाना बेगम सारा के कमरे में आई, लेकिन सारा ने उन्हें देखकर ऐसे बिहेव किया जैसे वो गहरी नींद सो रही हो। फरजाना बेगम कितनी देर उसके पास बैठी रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन बारात थी। पूरे घर में हलचल मची हुई थी। सब लोग तैयारियों में मसरूफ थे। फरजाना बेगम ने जल्दी जल्दी सब काम निपटाकर सारा को रेहान के साथ पार्लर भिजवा दिया ताकि वो वक्त पर तैयार हो सके। रेहान उसे पार्लर छोड़कर वापसी का वक्त बताते जल्दी से घर पहुंचा ताकि बाकी तैयारियों का जायजा ले सके। फंक्शन बैंक्वेट में रखा गया था। सब लोग वहां पहुंच चुके थे। अब तो बस दूल्हा दुल्हन का इंतजार था। कुछ ही देर में फरहान तैमूर गोल्डन कलर की शेरवानी पहनकर अपनी भरपूर वजाहत के साथ हॉल में दाखिल हुआ। सबने गुलाब के फूलों से उसका इस्तकबाल किया और फिर कुछ ही देर में रेहान तैमूर सारा को भी लेकर हॉल में पहुंचा। सारा गोल्डन और ब्लू मैरून के कंट्रास्ट में आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। ऊपर से उसका सोगवार हुस्न उसे मजीद 4 चांद लगा रहा था। फरहान तैमूर ने एक सरसरी सी नजर डालनी चाहिए, लेकिन जब नजर पड़ी तो फिर पलटना भूल गया। आज तो चारों खाने चित हो गए। डीएसपी साहब, इस हुस्न के पैकर को मैं क्या सजा दूंगा जो मेरे दिल के लिए सजाए मोहब्बत मुंतखब कर चुकी है? नहीं, मोहब्बत तो बचपन से थी। यूं कह लो कि अब सजाए इश्क बन गई है और आज उम्र कैद भी हो रही है। वो सारा को मुसलसल नजरों के हिसार में लिए
दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुआ। जब सारा स्टेज के पास आई तो फरहान अपनी जगह से उठा और अपना हाथ सारा के सामने फैलाया। सारा ने एक नजर फरहान के हाथ पर और दूसरी नजर फरहान के चेहरे पर डाली। फरहान ने आंखों से इशारा करते हाथ थामने का कहा तो सारा ने अपना कपकपाता हाथ फरहान के हाथ में रख दिया। फरहान ने मजबूती से उसका हाथ थामा और उसे स्टेज पर चढ़ने में मदद दी और अपने साथ बिठा लिया। कुछ ही देर में रस्में शुरू हो गई। शाम को हॉल से रुखसती करवाकर सारा को घर ले आए। सारा की तबीयत को मद्देनजर रखते उसे जल्द ही कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे में आकर उसे घुटन महसूस होने लगी। सारा बैठी इंतजार कर रही थी। दिल में अजीब सा खौफ था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और फरहान कमरे में दाखिल हुआ। सारा का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। फरहान ने दरवाजा बंद किया और आहिस्ता कदमों से उसके पास आया। सारा ने नजरें झुका ली। वो चाहकर भी उसे देख ना सकी। फरहान ने कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखा और फिर बोला, जाओ मिसेस, जाकर चेंज करो और सो जाओ। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने खानदान की इज्जत बचाने की खातिर अपनाया है ताकि तुम आगे कोई ऐसी बेवकूफ़ी ना करो, वरना मेरा तो दिल कर रहा है तुम्हें यहीं दफना दूं, तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं कभी। और हाँ, ये मनहूसों जैसी शक्ल मेरे सामने मत बनाया करो, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम कितनी मासूम और बावकार हो। मुसलसल लफ्जों के तीर बरसाते हुए फरहान उसकी रूह को मुकम्मल तौर पर जख्मी कर गया था। सारा अपने आंसू साफ करती हुई ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी और सादा सा लिबास पहनकर बाहर आई। अब वो खड़ी ये सोच रही थी कि कहाँ लेटे, लेकिन ये उलझन भी फरहान तैमूर ने आसान कर दी। उधर सोफे पर लेट जाओ, तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे बेड पर मेरे साथ लेट सको। ये कहकर फरहान तैमूर भी चेंज करके लाइट ऑफ करते बेड पर लेट गया। सारा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती सोफे पर लेट गई। उसे नींद कहाँ आनी थी। लेटे लेटे वो सोचने लगी, उठ जाओ सारा, यूनिवर्सिटी से देर हो जाएगी। सारा अपनी माँ की आवाज सुनकर जल्दी से उठी और फ्रेश होकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। आज उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था और अगर लेट हो जाती तो क्या इंप्रेशन पड़ता टीचर्स पर। यही सोचते हुए उसने नाश्ते में सिर्फ 2 स्लाइस ब्रेड पर जैम लगाकर खाए और साथ ही जल्दी जल्दी चाय के घूंट भरने लगी। इतनी देर में फरहान तैमूर भी नाश्ता करने आया और सारा को यूं जल्दबाजी में नाश्ता करते देखकर नफी में सर हिला दिया। सारा, ये क्या बदतमीजी है, बैठकर सुकून से नाश्ता करो। अरे नहीं फरहान, आपको नहीं पता, मेरा यूनी में पहला दिन है और पहले दिन मिस सारा अब्दुल्ला खान लेट। सोचो क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरा पहले लेक्चरार पर, और फिर जो इंसल्ट होगी उस लेक्चरार के हाथों वो अलग, और इस इंसल्ट पर पूरी क्लास का मुझ पर हंसना। नो वे, इतने ज्यादा हार्ट अटैक, मेरा मतलब हादसे में एक दिन में एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए आप तमीज प्लस सुकून से नाश्ता करें, मुझे बदतमीजी प्लस बेसकूनी से करने दे। इतना कहकर वो एक स्लाइस लेकर सबको अल्लाह हाफिज बोलती बाहर को भागी। पीछे से फरहान सर झुकाए उसकी बातों पर मुस्कुराने लगा। पागल है बिल्कुल, पता नहीं क्या बनेगा मेरा, वो दिल में सोचने लगा। तौबा है इस लड़की से, कैसे तूफान मेल बनी रहती है, कभी जो एक दिन भी सुकून से रहे। फरजाना बेगम तासुफ से सर हिलाते बोली तो सभी मुस्कुरा दिए। अरे बेगम, यही तो घर की रौनक है, अब ये तूफान नहीं मचाएगी तो क्या आप मचाएंगी इस उम्र में। अब्दुल्ला खान की बात सुनकर सब हंसने लगे, जबकि फरजाना बेगम खफीफ सी शर्मिंदा होकर किचन में चली गई। दिन यूं ही बेफिक्री से और बहुत अच्छे गुजर रहे थे। सब अपनी जिंदगी में मगन थे। फरहान सारा को शुरू से ही बहुत पसंद करता था और जब से उसे पता चला था कि सारा उसके नाम से मंसूब है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो तो खुदा का शुक्र अदा करते नहीं थकता था कि उस परवरदिगार ने बिना मांगे हर खुशी उसकी झोली में डाल दी थी। जब सारा को पता चला कि वो पैदा होते ही फरहान के नाम कर दी गई है तो उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका नाम किसके साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो इन चक्रों में पड़ी ही नहीं थी। बस वालिदैन ने जिधर कह दिया उधर मुड़ गई। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की टॉप बिजनेस वुमेन में अपना नाम देखे। एक दिन वो यूनिवर्सिटी गई तो अजीब सी हलचल थी। उसने इर्द गिर्द देखा लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया तो वो कंधे उचकाकर क्लास में चली गई और अपनी फ्रेंड सादिया से पूछने लगी जो क्लास में पहले से मौजूद थी, यार ये बाहर शोर कैसा है, ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान हमारी यूनी में आ रहा हो। अरे नहीं यार, वो है ना मशहूर बिजनेसमैन कामरान चौहान का बेटा वकास चौहान, उसने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो बस लड़कियां उसी के लिए पागल हो रही हैं। हैं? अब ऐसी भी क्या बात उसमें कि लड़कियां यूं पागल हो रही हैं? उसने सर झटका। अरे तुम्हें नहीं पता, वो एक तो बहुत ज्यादा अमीर है और ऊपर से हैंडसम इतना कि मत पूछो, और फिर उसका ड्रेसिंग स्टाइल उफ कमाल कर देता है। और गजब ये कि उसे खुद भी मालूम है कि वो बला का हैंडसम है। अच्छा बस ज्यादा कसीदे ना पढ़ो उसके बारे में, अपना टेस्ट है आज मालूम है ना। हाँ पता है लेकिन याद नहीं है।
वो रोहानसी होकर बोली। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम हैंडसम लड़के ही देखती रहो, वो नफी में सर हिलाते हुए बोली। वकास चौहान का यूनिवर्सिटी में दाखिला वाकई एक तूफान ले आया था। हर तरफ लड़कियां उसी के गिर्द घूम रही थी, जबकि सारा को इन सब बखेड़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपना टेस्ट देने में मसरूफ थी। क्लास खत्म होते ही वो सादिया के साथ कैफे की तरफ चल दी। वैसे सादिया, तुम वकास चौहान को देख चुकी हो? सारा ने यूं ही पूछा तो सादिया ने पुरजोश अंदाज में सर हिलाया। ओहो यार, देखा तो है लेकिन करीब से देखने का मौका नहीं मिला। बस इतना कहूंगी कि तस्वीरों से ज्यादा हैंडसम है। सादिया की बात सुनकर सारा ने जोर से कह कहा लगाया। ए पागल कहीं की, छोड़ अब उसे। और ये बता, तुझे पता है आज हमारी क्लास का लेक्चर चेंज हो गया और न्यू प्रोफेसर आ रहे हैं? हाँ यार, सुना है। काफी सख्त है लेक्चरार भी, सख्त हो गया है और टेस्ट भी खराब गया। सादिया ने अफसुर्दगी से कहा तो उसकी बात सुनकर सारा हंसने लगी। हाँ हाँ हंस लो, तुम्हें सब कुछ आता है। अब तुम मेहनत कर लो तो तुम्हें भी सब कुछ आ जाएगा। छोड़ो यार, मुझसे नहीं होती इतनी मेहनत। और फिर वो दोनों कैफे से जल्दी जल्दी खाकर अपनी अगली क्लास के लिए निकल गई। दूसरी तरफ वकास चौहान अपनी शान में मगन यूनिवर्सिटी के विजिट में मसरूफ था, जहां हर लड़की उस पर फिदा हो रही थी। मगर वकास को भी अपनी पर्सनैलिटी का भरपूर अंदाजा था, इसीलिए वो खुद को तो बज़ाहिर लापरवाह जाहिर कर रहा था, लेकिन दिल ही दिल में इतराब ही रहा था और हर खूबसूरत लड़की को सर से पांव तक ऐसे घूर रहा था जैसे वो उसी की मलकियत हो। खैर, यूं ही वो घूमते घूमते अपनी क्लास तक पहुंच गया और अंदर जाकर एक साइड पर बैठ गया। अगली क्लास में सारा अपनी किताबें खोले नोट्स बना रही थी जब दरवाजा खुला और एक कद्दावर वजीह शख्सियत क्लास में दाखिल हुई। सबने एहतरामन खड़े होकर उसे सलाम किया। वो थे प्रोफेसर जैद मलिक, जो अपनी सख्ती और उसूल पसंदी के लिए मशहूर थे। जैद मलिक की निगाह पूरी क्लास पर घुमाई। देखो बच्चों, मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि एक तो मुझे अपने लेक्चर में मुकम्मल खामोशी चाहिए। जो भी सवाल हो वो आप लेक्चर के बाद पूछ सकते हैं। जो भी असाइनमेंट दूं वो टाइम पर मुझे चाहिए। दिन इसी तरह गुजरते रहे। यूनिवर्सिटी में वकास चौहान का चर्चा बढ़ता गया और सारा अब्दुल्ला खान अपनी ही दुनिया में मगन रही। उसे ना किसी की शोहरत से दिलचस्पी थी, ना किसी की अमीरी से। कई बार वकास चौहान ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने की कोशिश की, लेकिन सारा हमेशा उससे लिए दिए वाला अंदाज रखती, ज्यादा फ्री नहीं होती। इसी दौरान एक दिन वकास चौहान कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा था, लेकिन उसकी नजर मुसलसल सारा पर थी। तभी उसके एक दोस्त ने महसूस करते हुए कहा, कोई फायदा नहीं यार, वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। आज तक मैंने उसे किसी लड़के से बिना मतलब के बात करते नहीं देखा। वकास चौहान ने हंसते हुए कहा, अच्छा ये बात है तो देखना, एक दिन मैंने भी इसे अपने पीछे ना घुमाया तो मेरा नाम वकास चौहान नहीं। दोस्त ने कह कहा लगाते कहा, अच्छा ये बात तो ठीक है, फिर लगी शर्त, देखते हैं कि तुम ये चैलेंज कैसे जीतते हो। वकास ने मुस्कुराते हुए कहा, सुन लो, आज से पूरे 1 माह बाद ये मेरे साथ डेट मार रही होगी। दोस्तों ने जोश में आकर कहा, डन हो गया। सब दोस्त अब इसी इंतजार में थे कि वो सारा को कैसे अपने करीब करेगा और फिर कुछ ही देर बाद वो सब वहां से उठकर चले गए। वकास चौहान के दिमाग में अब सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि किस तरह सारा को अपने करीब लाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार उसका सामने आना और बहाने बहाने से उससे बात करना सारा के दिल में हलचल जरूर मचा चुका था। अगले ही दिन वो फ्री लेक्चर में सारा के पास पहुंच गया। तो मिस सारा, मुझे नोट्स दे दें प्लीज। और हाँ, ये ले नोट्स, लेकिन प्लीज इसकी फोटोकॉपी करवाकर मुझे वापस लाजमी कर दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर, मैं आज ही इसकी फोटोकॉपी करवाकर कल आपको वापस कर दूंगा। तो सारा मुस्कुराते हुए ठीक है कहकर चली गई। वो कभी कोई मजाहिया बात करके उसे हंसाता, कभी पढ़ाई का बहाना बनाकर उसके करीब होता। सारा, जो शुरू में मोहतात थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने खुलने लगी। उस दिन के बाद वकास ने सारा को मजीद मुतासिर करने के लिए छोटे छोटे सरप्राइज देना शुरू कर दिए। कभी उसकी पसंदीदा चॉकलेट ले आता, कभी उसकी कोई और गिफ्ट खरीद देता। सारा पहले तो झिझक जाती, लेकिन वकास का मुसलसल खुलूस देखकर वो इन छोटी छोटी बातों को महसूस करने लगी और उसके दिल में वकास के लिए एक नरम गोशा पैदा हो गया था। अगले दिन वकास ने सारी क्लास को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। लिसन अप गाइस, सब उसकी तरफ देखने लगे। कल मेरे घर एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी है, तो मैं चाहता हूँ आप सब मेरी पार्टी में शिरकत करें। घर आकर भी मुस्कुराहट उसके होंठों से जुदा नहीं हो रही थी, जो कि फरहान ने भी महसूस की, लेकिन नजरअंदाज कर गया। तैमूर खान ने कहा तो सारा ने सुकून का सांस लिया, लेकिन फरहान की नजरें खुद पर महसूस करके उसे घबराहट हो रही थी। इसीलिए उसने अपना खाना जल्दी खत्म किया और कमरे में चली गई और कल की पार्टी के लिए ड्रेस का इंतखाब करने लगी।
अगले दिन सारा सुबह से खुश थी। दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। वो बार बार अपनी तैयारी चेक कर रही थी। ड्रेस मैच करके रखा हुआ था और सादिया को बार बार कॉल करके कंफर्म कर रही थी कि वो वक्त पर आ जाए। दिल जैसे तेजी से धड़कने लगा, लेकिन कुछ कह ना सकी। वकास ने उसकी खामोशी को हाँ समझकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा, ये वादा रहा। सारा ने नजरें झुका ली और बस एक धीमी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। मैं सोच कर बताऊंगी वकास। ठीक है, टेक योर टाइम, लेकिन प्लीज मुझे मायूस मत करना और जल्दी जवाब देना, वो भी मस्बत, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा कभी ना जुड़ने के लिए। प्लीज यार, सोचते वक्त थोड़ा सा ख्याल कर लेना कि कोई तुम्हारे पीछे पागल है। तुम्हें पता है कि लड़कियां जब मेरे इर्द गिर्द जमा रहती थी तो मुझे जरा पसंद नहीं था लड़कियों का यूं खुद को पेश करना। मैं समझता था कि सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। जहां अमीर लड़का देखा नहीं बस फ्लैट हो गई, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम सबसे अलग हो, सबसे मुनफरिद, सबसे बेहतरीन, मेरी जिंदगी का कीमती असासा। वो सारा को अपने अल्फाज के शहर में जकड़ता रहा था और सारा मुसलसल उसकी बातों के ज़ेरे असर खुद को खुशकिस्मत तस्वुर कर रही थी कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है कि जिसे एक जहां चाहता है वो उसे चाहता है और उसके प्यार में पागल है। वकास की बातें सारा के दिल पर एक अजीब सा असर कर रही थी। वो खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी और एक तरफ उसका दिल बेकाबू हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो सोच रही थी कि क्या ये सब हकीकत है? क्या वाकई वो उसके प्यार में इतना पागल है? क्या वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है? सारा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके जहन में मुख्तलिफ सवालात आ रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जैसे वो किसी नए और खूबसूरत ख्वाब में खो चुकी हो। वो इस वक्त बिल्कुल भूल चुकी थी कि वो बचपन से किसी के नाम है। उसका नाम तो बचपन से ही किसी के साथ मंसूब है। वो जो उसको अपना सब कुछ मान चुका है, उस फरहान का क्या जो इसके लिए पागल है? वो सारा को ही अपनी कुल कायनात समझता है, लेकिन ये सब बातें और फरहान उस वक्त कहीं भी नहीं था। इस वक्त अगर कोई था तो वो सिर्फ वकास चौहान और उसकी बातें, इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं था। और ना ही इस वक्त वो कुछ सोचना समझना चाहती थी। कब पार्टी खत्म हुई, कब वो घर पहुंची, उसे कुछ भी होश नहीं था। उसे बस याद था तो इतना कि वकास उसे चाहता है और वो वकास के प्यार पर ईमान ले आई थी। फिर तो ये सिलसिला जारी हो गया। फोन पर घंटों गुफ्तगू करना, एक दूसरे को गिफ्ट देना और यूनी में हर जगह इकट्ठे पाया जाना। कैंटीन में वकास अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वैसे यार, मान गए, वाकई में तुमने सारा को अपना दीवाना बना लिया है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वकास चौहान को कोई हरा नहीं सकता। बस अब आखिरी दाव खेलना, उसके बाद चित भी मेरी और पद भी मेरी, और फिर सारा खान आसमान से जमीन पर होगी। और फिर वो सब कहकहा लगाकर हंसने लगे। सारा अपने कमरे में बैठी थी कि उसका दरवाजा बजा। आ जाओ। फरहान तैमूर कमरे में दाखिल हुआ तो सारा जो कि लेटी हुई थी एकदम से उठ बैठी। अरे डीएसपी साहब, आप आज मेरे गरीब खाने पर? खैरियत? उसकी बात सुनकर फरहान मुस्कुरा दिया। हाँ, काफी दिनों से तुम्हें देखा नहीं था तो सोचा जाकर मिल लूं। इन दिनों मैं एक केस के सिलसिले में काफी बिजी था ना, इसलिए। ओह अच्छा, और तुम्हारी स्टडी कैसी जा रही है? बहुत अच्छी, हमेशा की तरह। गुड। और यूनी में सब ठीक है? कोई मेरी मंगेतर को तंग तो नहीं कर रहा? अगर कोई मसला हो तो मुझे बताना। फरहान की मंगेतर वाली बात पर वो एकदम से घबराई, लेकिन फिर जल्दी से खुद को कंपोज करते कहा, अरे नहीं नहीं डीएसपी साहब, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। किसी में इतनी हिम्मत कि वो सारा अब्दुल्ला खान को कुछ कहे? फरहान खुलकर मुस्कुराया। हाँ ये तो है। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। ये बात कभी मत भूलना, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगी जो मैंने तुमसे हमेशा छुपाया, समझी? वो पता नहीं क्या बावर कराना चाहता था, लेकिन इतना कहकर वो चला गया। लेकिन सारा की जिंदगी में तूफान बरपा कर गया। उसे घबराहट होने लगी। अभी वो कुछ और सोचती कि उसी वक्त उसे वकास की कॉल आ गई और वो गहरी सांस भरते हुए खुद को रिलैक्स किया और कॉल अटेंड की। हेलो, कहाँ थी? इतनी देर कर दी कॉल उठाने में। दूसरी तरफ से कॉल पिक करते ही सवालात की बारिश शुरू हो गई। कहीं नहीं, मोबाइल चार्जिंग पे था। अच्छा, मुझसे कब अकेले में मिल रही हो? अरे यार, मैंने तुम्हें बताया ना कि ऐसा मुमकिन नहीं है। देखो, अगर तुम मुझसे वाकई प्यार करती हो तो इसका सबूत देना होगा, और मुझे तुम अभी आधे घंटे में होटल ब्लू डायमंड में मिलोगी। बस मैं आधा घंटा वेट करूंगा और फिर चला जाऊंगा, हमेशा के लिए, होटल के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी से भी। और वकास ने कहते ही कॉल बंद कर दी। अब सारा बहुत परेशान हो रही थी। वो मुसलसल सोचने के बाद उसने एक फैसला किया और फिर उठकर तैयार होकर इधर उधर देखा और बाहर निकल गई। कैब करवाकर होटल ब्लू डायमंड पहुंच गई।
یہ جانے بغیر کہ یہ وقاص چوہان وہ انسان ہے جو لڑکیوں کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے اور پھر پھینک دیتا ہے۔ لڑکیاں اس کے لیے محض دل بہلانے کا سامان ہے۔ وہ کبھی بھی کسی لڑکی کو پیار نہیں کر سکتا، وہ صرف انہیں استعمال کر سکتا ہے۔ جو لڑکی اسے اچھی لگتی کچھ دن اس کے ساتھ رہتا، اپنی راتیں رنگین کرتا اور جب دل بھر جاتا تو اسے لباس کی طرح بدل لیتا، پھر کبھی نہ پہننے کے لیے۔ اور لڑکیاں بھی اتنی بے وقوف ہوتی ہیں کہ اپنا عزت کا خیال کیے بغیر اس لڑکی کی جھولی میں گر جاتی جو انہیں پیسہ دکھاتے ہیں۔ میں سبھی لڑکیوں کی بات نہیں کرتی، لیکن موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے، اور اپنے والدین کی برسوں کی بنائی عزت کو ایک سیکنڈ میں خاک میں ملا دیتی ہیں اور ان کا سر ساری زندگی کے لیے جھکا دیتی ہیں۔ وقاص نے جب سارا کو آتے دیکھا تو کمینگی سے مسکراتے اسے ہوٹل کے VIP کمرے میں لے گیا۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ وہ اسے بٹھا کر خود باہر گیا اور اپنے دوستوں کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنسنے لگا اور اپنے ایک دوست سے کہا، ہاں بتاؤ، اسپائی کیمرہ لے کر آئے ہو نا؟ ارے یار، تو کوئی کام کہے اور ہم نہ کریں، ایسا کبھی ہوا ہے کیا؟ اور پھر یہ والا کام تو ہے بھی بہت انٹرسٹنگ اور انٹرٹینمنٹ والا۔ اس کی بات سن کر سب نے مکرو کہا لگایا، لیکن جیسے ہی وقاص کمرے میں گیا اور دروازہ بند کرنے لگا تو ایک دم سے جھٹکے سے دروازہ کھلا اور آنے والی شخصیت کو دیکھ کر سارا کا رنگ فک ہو گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرحان تیمور تھا، اس کا بچپن کا منگیتر۔ اوئے، کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ لیکن فرحان اسے جواب دینے کی بجائے سرخ آنکھوں سے سارا کو گھور رہا تھا، مسلسل سارا کو دیکھنے سے۔ وقاص نے کہا لگایا، لگتا ہے اس نے تجھے بھی پھنسا رکھا ہے، لیکن تو فکر نہ کر، اگر تیرا بھی دل ہے تو آ جا، دونوں عیش کرتے ہیں۔ ویسے بھی آج میرا اس کے ساتھ آخری دن ہے، بس اس کے ساتھ کچھ گھنٹے اپنے رنگین کر کے پھر ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑنے والا ہوں، کیونکہ اب میں پیار کا ناٹک کرتے کرتے بور ہو گیا ہوں۔ سارا اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں گرم گرم سیسا انڈیل دیا ہو۔ اور پھر بڑی، یہ تمہاری، میں تو بس… اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، فرحان نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا جسے وہ بلبلا اٹھا۔ کمینے، کون ہے تو؟ تیری اتنی ہمت کہ تو مجھے مارے؟ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ وقاص غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ تو وقاص چوہان، اپنے امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، بلکہ اولاد نہیں، تو کتا ہے جو جگہ جگہ منہ مارتا ہے۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیل چکا ہے، لیکن اس دفعہ تو نے غلط لڑکی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ ارے میں تو تب سے تیرے پیچھے ہوں جب تو نے اپنے گھر پارٹی رکھی تھی میری منگیتر کو اپنے پیار کے جال میں پھنسانے کے لیے، اور یہ اتنی بے وقوف کہ بنا سوچے سمجھے تیری طرف راغب ہو گئی۔ اور تجھے پتا ہے میں نے ابھی تیری اتنی بکواس کیوں سنی؟ تاکہ اس کے سامنے تیری اصلیت آ جائے، تیرے بارے میں جان جائے کہ تو گندی نالی کا کیڑا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ اسے مسلسل مارتے ہوئے وہ بے ہوش کر گیا، جبکہ سارا کو لگا کہ وہ تھوڑی دیر اور کھڑی رہی تو گر جائے گی۔ اس نے کال کر کے اپنے ڈپارٹمنٹ سے اپنا بھروسے مند آدمی بلایا اور اسے خفیہ جگہ پر لے گیا، اور ساتھ ہی سارا کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا اور ریش ڈرائیونگ کرتے گھر پہنچا۔ اترو گاڑی سے، وہ غرایا، جبکہ اسے لگا جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ وہ اترنے لگی کہ تبھی فرحان نے اسے روکا۔ رکو۔ سارا رکی، لیکن اس نے فرحان کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ گھر میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر مت کرنا، میں نہیں چاہتا گھر والے تمہارے کارناموں سے پریشان ہوں، اب جاؤ۔ اور سارا جلدی سے اتر کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور کمرہ لاک کر لیا، جبکہ فرحان اپنے خفیہ جگہ پر گیا اور وہاں وقاص چوہان کی اچھے سے درکت بنا کر اسے اپنے پولیس اسٹیشن میں لے آیا اور ان گنت لڑکیوں کے ریپ اور ان کو ہرائس کے کیس میں اسے سزا دلوائی۔ اس کے باپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا اسے چھڑوانے میں، لیکن فرحان نے اس کی ایک نہ چلنے دی، اور اس نے اس کے باپ کو بھی دھمکی دی کہ اگر اس نے اب کچھ کیا تو وہ اسے بیٹے کے ساتھ بند کروا دے گا، یہ کہہ کر کہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ برابر کے شریک ہو۔ اور پھر اگلے ہی دن گھر والوں سے شادی کا کہا، اور آج سارا فرحان کی بیوی بن گئی، محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کتنے ہی دن یوں ہی گزر گئے، فرحان کا رویہ اس کے ساتھ پہلے دن جیسا ہی تھا۔ اب تو سارا کو اس کا رویہ بہت تکلیف دینے لگا تھا۔ اس نے کئی بار فرحان کو منانے کی کوشش کی، لیکن سب بیکار تھا۔ یہ نومبر کی شام تھی، رات کو کافی زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی تھی اور آج تو بارش بھی ہو رہی تھی، لیکن سارا بالکنی میں بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ فرحان تیمور کو کیسے منائے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ اسے نہ تو سردی کا احساس ہو رہا تھا اور نہ بارش کا۔ جب فرحان گھر آیا اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے سارا نہ نیچے نظر آئی اور نہ ہی کمرے میں۔ باتھ روم،
ड्रेसिंग रूम चेक करने के बाद जब अचानक वो बालकनी में आया तो सारा घुटनों में सर दिए बैठी थी। सारा अंदर आओ, बीमार हो जाओगी। लेकिन सारा ने उसकी कोई बात ना सुनी। देखो सारा, ये ड्रामे मेरे साथ मत करो। अगर बीमार हो गई तो मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। सारा फिर भी टस से मस ना हुई। फरहान झुंझुलाते हुए बालकनी में गया और जैसे ही सारा का बाजू पकड़कर हिलाया तो वो बेहोश हो चुकी थी। फरहान ने जल्दी से उसे उठाया और कमरे में लाकर उसे बेड पर लेटाया। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। फरहान ने लाइट ऑफ करके सबसे पहले उसके कपड़े चेंज किए और फिर लाइट ऑन करके उसके हाथ पांव रगड़ने लगा। लेकिन कोई अफाका ना हुआ तो वो उसे गाड़ी में लेटाकर अस्पताल ले गया। घर में सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे, इसीलिए किसी को भी सारा की हालत के बारे में मालूम नहीं हुआ। अस्पताल में उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। वो बाहर परेशानी में इधर उधर टहल रहा था। जो भी था वो उसकी मोहब्बत थी और महबूब चाहे जैसा भी हो उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। कुछ ही देर में डॉक्टर ने उसे बताया कि अब वो बेहतर है, लेकिन दवाइयों के ज़ेरे असर है और ठंड के अलावा उसे जहनी दबाव भी है, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा मसला हुआ। आप कोशिश करें उसे परेशानी से दूर रखें और उसका बहुत ख्याल रखें। डॉक्टर हिदायत देते चला गया, जबकि फरहान कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद दरवाजा खोलकर अंदर गया, जहां वो बेखबर सो रही थी, लेकिन उसके लब मुसलसल हरकत में थे, जैसे वो नीम बेहोशी में कुछ कह रही हो। फरहान ने तजस्सुस के मारे आगे बढ़कर अपना चेहरा उसके करीब किया और उसकी बातें सुनने की कोशिश की। प्लीज फरहान, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे। आहिस्ता से कहते कहते वो यकदम रोने लगी और ऊंची आवाज में बड़बड़ाने लगी और अपना सर तकिए पर इधर उधर पटकने लगी। फरहान ने जल्दी से उसे अपने हिसार में लिया और उसके बालों में हाथ फेरते उसे चुप करवाने लगा। कितनी ही देर वो उसे चुप करवाने और काबू करने में लगा रहा। बड़ी मुश्किल से सारा संभली, लेकिन अभी भी फरहान की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े रो रही थी, जैसे अगर छोड़ दिया तो वो छोड़कर भाग जाएगा। फरहान प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं बहक गई थी, मैं गलत थी, नादान थी, बहुत बहुत बेवकूफ थी, जो ये जानते हुए भी कि मैं सिर्फ आपकी हूँ फिर भी उसकी बातों में आकर उसके पीछे चल पड़ी। प्लीज मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दे। फरहान, अपनी सारा को माफ कर दे, मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। वो हिचकियों के दरमियान फरहान से माफी मांग रही थी और फरहान ने उसकी तरफ देखा और उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया और उसके माथे पर बोसा दिया। मैं तो तुमसे नाराज था ही नहीं, बस तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवा रहा था। लेकिन एक बात याद रखना कि जिंदगी में कभी भी गलत दोस्त नहीं चुनने चाहिए, वो लड़की हो या लड़का, और कोई कितना भी भरोसेमंद हो। यूं अकेले कभी कहीं नहीं जाते। सोचो अगर मैं ना पहुंचता तो क्या होता। नहीं, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। और आप क्यों ना होते, आप तो हर जगह हैं और रहेंगे। सारा की बात सुनकर फरहान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और उसने सारा के बालों पर बोसा देकर अपने साथ लगा लिया और अपने मजबूत हिसार से उसे यकीन दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ है और साथ रहेगा।